I bought myself a car. The first milestone of this year, owning my own company. I was invited as a guest speaker at NICAD. All of the big people were there and I was on the stage hosting the event. Hey everybody, this is Michelle Shahid and you're watching Michelle's World. It's been a really long time that you guys haven't heard from me, but now I am back. Last time I posted a video on YouTube, it was a year ago. So in this video, I'm gonna share everything that has happened to me in this entire year, right? अगर आप लोग मुझसे को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू वुड नो कि आई वॉज एक्टिव ऑल दिस टाइम ऑन इंस्टाग्राम. तो ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, मतलब कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई है. ऑफ कोर्स आई वॉज जस्ट नॉट हैविंग इनफ टाइम टू पोस्ट. I was just not having enough motivation to post, I would say. But now that I've pulled my shit together, so I will share everything that has happened to me this year in this video. So this year was all about traveling, exploring new places, and doing a lot of the things for the first time and making very risky and very difficult decisions of my life. Yeah, so I have traveled a lot of the new places. I explored a lot of the new places and achieved so many milestones that I'm gonna share with you. Also, I have written everything in this notebook and we'll go through all of the things one by one thing at a time. So let's go. This is the list. प्लीज डोंट जज मी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं. जनवरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है. तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना कि हर महीने मैंने कुछ ना कुछ किया, बट अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑलमोस्ट एवरी मंथ हैज समथिंग टू डिस्कस, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ. आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, तो मुझसे जॉब तो नहीं होती है और मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है जॉब करना और ऑफिस जाना और एक रूटीन को फॉलो करना तो पड़ता है बिकॉज आई हैव टू पे अ लॉट ऑफ माई बिल्स, बट करना बहुत ही मुश्किल काम है ऑनेस्टली. एंड ऑल ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल हु गो टू वर्क डेली विल रिलेट टू मी कि एक्चुअली ऐसा ही है, राइट. तो टॉकिंग अबाउट माई करियर एंड माई प्रोफेशनल लाइफ, आई वॉज वर्किंग एट अ कंपनी, राइट, ऑफ कोर्स. तो वहाँ पर दे हैड अ कॉम्पिटिशन जिसमें आई टुक पार्ट ऑफ कोर्स एंड वी हैड टू प्रेजेंट समथिंग. तो मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, तो आई एम नॉट श्योर कि टॉपिक क्या था प्रेजेंटेशन का, बट येस इट वाज देयर. कुछ था जिस पे मैंने प्रेजेंट किया था विद my other team members and a lot of other participants as well from my office, right. तो उनमें से I got the first prize. This is my achievement number 1, right. उसके बाद I went on a concert of Sahara UK. It's not an achievement, it's not an accomplishment that I've made, but yeah, if you know me at all, you would know that I'm a party girl and I really love to have fun. I'm very outgoing. I love going out and having a lot of fun with good friends and good people, right? So yeah, concert was one of the good days of my life so far. बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत नाचा हमने, बहुत डांस किया. It was fun, right? जो अच्छे अच्छे accomplishments हैं, I'll tell you about them later on. In the month of May, I went on a greatest trip of my life, which led to another greatest decision of my life. That is an achievement. Yes. So basically, I never went to Gilgit-Baltistan, so I had to go there, of course. और इसकी backstory ये है कि first I think in 2021 it was the first time when I went on a trip all by myself, all alone with random people, and I had so much fun. That was my first time traveling solo. बहुत मज़ा आया था मुझे, बहुत, and that was the my opening of the rabbit hole. जब मैंने एक्सप्लोर किया कि oh god, which rock had I been living under all my life. कहाँ रह रही थी मैं कि ये सब मैं नहीं कर पाई. उससे पहले मैं क्यों नहीं गई हूँ लाइफ में ट्रैवल करना. तो उसके बाद से मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया. उसके बाद वो दैट वाज when I went to नानकान, right. उसके बाद मैं कश्मीर गई और उसके बाद फिर थर्ड ट्रिप वाज दिस वन जब मैं स्कर्दू और हंजा ट्रैवल करने के लिए गई. इट वॉज द मोस्ट फन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप विद रैंडम पीपल. आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पर. और जब दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फाउंड आउट कि एक्चुअली आई एम in love with nature. I love water, I love mountains, even I love the cold desert. मतलब डेजर्ट में क्या किसी को पसंद आ सकता है,
मुझे वो भी पसंद आ गया था। सही है। तो उस दिन के बाद वहाँ से वापस आते आते भी आई वॉज प्लानिंग कि जब मैं वापस आई थी तो ऑफ कोर्स आई हैड टू गो बैक टू वर्क, और विच आई रियली डिडंट वांट टू। तो मौत आ रही थी मुझे उस टाइम, ठीक है। और उस टाइम मैं सोच रही थी कि कुछ तो मुझे ऐसा करना होगा भाई कि मुझे ये नॉर्मल ऑफिस रूटीन और इन सब से हट के कुछ ऐसी जॉब करनी है जिस पे मैं हर टाइम घूम फिर सकूँ, घूमूँ फिरूँ, ट्रैवल करूँ, ये करूँ, करूँ। सही है। तो उस टाइम पे इवन आई वॉज थिंकिंग टू स्विच एंड बिकम टूर गाइड। तो जब मैं वहाँ से वापस आई थी नॉर्थ से, तो वहाँ से वापस आके मैंने एक्चुअली कुछ ट्रैवल कंपनीज को रीच आउट किया एंड आई आस्क्ड देम कि आई वांट टू बी अ टूर गाइड, प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस और मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे कैसे बनना चाहिए। बट अगैन दे टोल्ड मी कि फॉर अ गर्ल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि होता है, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि नहीं हो रहा, नहीं हो ही नहीं सकता, होता है। लॉट ऑफ द गर्ल्स आर एक्चुअली डूइंग दिस जॉब, बट बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए, क्योंकि हर वक्त उनको घर से बाहर रहना है और नॉर्मली परमिशंस नहीं मिलती हैं इन द ब्राउन फैमिलीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था कि मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि यू नो आई डोंट वांट टू गो टू वर्क डेली, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, आई डोंट लाइक दिस रूटीन। मतलब ठीक है, इट्स जस्ट पेइंग माई बिल्स, इट्स जस्ट making me independent, I can have my own money and everything, but I'm not happy, I'm not enjoying, ठीक है। तो I don't want to do this at all। तो other than that I want to do something जिससे मैं travel कर पाऊँ, because this time जब मैं वहाँ से, और मैं हर दिन उसको वहाँ पे खड़े होकर कॉल करती थी कि you know ये हो गया, आज मैंने ये देखा, आज मैंने पाशू मैडो देखा, आज पाशू मैडो was the most breathtaking experience of my life। बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, ठीक है। my words can't even do justice with the beauty of that। खैर, तो उसको मैं हर दिन कॉल करके बताती थी कि सुनो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये देखा, और मतलब तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे डिस्कस किया एंड वी बोथ फाइनली डिसाइडेड कि हम लोग अपना एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट जगहों पर ट्रिप्स लेकर जाएंगे। मतलब हम लोगों ने अपना एक ट्रैवलिंग एजेंसी स्टार्ट की एंड दिस हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। मतलब मैं जून, और उससे पहले आई ऑल्सो वेंट टू कराची बाय द वे। मतलब इस जब मैं नॉर्थ से वापस आई तो इसके बाद ये सारा काम हमने स्टार्ट कर दिया, थिंकिंग प्रोसेस एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड हाउ टू डू दैट, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें, डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, ये सब स्टार्ट हो गया। मीनवाइल आई वेंट टू कराची जस्ट फॉर अ डे और टू आई थिंक, बट आई डिडंट गो विद अ गुड कंपनी। तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऑल्सो मैं जब गई थी कराची तो वो बहुत ही जून का मंथ था, तो जून में तो वहाँ पर बहुत ही बुरी किस्म की गर्मी होती है, जहाँ पसीने बह रहे हैं, यहाँ पे हल्के से भी बाल स्ट्रेट करते तो वो चिपक जाते हैं, और बहुत ही गंदा मौसम था वहाँ पे, ठीक है। तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। बट कराची में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो आई वेंट टू देयर प्लेस, और फिर वहाँ जाके थोड़ा मुझे अच्छा लगा था बिकॉज आई न्यू देम एंड वी वेंट आउट, और थोड़ा पार्टी की हम लोगों ने, दे हैड द किड्स एंड आई हैड अ गुड टाइम विद देम, तो वहाँ पे मज़ा आया था। बट उसके जो पहले का दिन था, दो आई स्टेड एट अ वेरी गुड होटल, आई स्टेड इन मैरियट, वहाँ पर उनका बहुत प्यारा सा एक स्विमिंग पूल था, तो आई वेंट देयर, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ करने कोई था ही नहीं वहाँ पर। तो अब जिनके साथ मैं गई थी उनके साथ तो आई वॉज नॉट हैविंग फन एट ऑल, तो मैं क्या करती, मतलब क्या ही करना था मेरे वहाँ पर। तो इस वजह से आई एक्सप्लोर्ड वाटर द स्विमिंग पूल, और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में तब पानी में कदम रखा था, लाइक इन द काइंड ऑफ अ पूल, क्योंकि पानी के साथ मेरा कोई भी इनकाउंटर हुआ ही नहीं था लाइफ में उससे पहले। मतलब छोटा मोटा पानी जो पाँव तक आ रहा है वो तो खैर है, बट पूरा व्हेन यू आर इन वाटर टिल हेयर, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल है। अपना चल पा रही हो पानी के अंदर ना, आपको, मुझे तो स्विम, मैं तो पागल हो गई थी, मैं यूट्यूब पे वहाँ बैठ के देख रही हूँ यार हाउ टू स्विम इन द पूल, तो मुझसे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने वहाँ पर की। उसके अलावा तो ऐसे वहाँ पर कुछ भी फन नहीं था। उसके बाद जब मैं वापस आई तो अगैन वी resumed our brainstorming sessions and everything, discussions और सब कुछ कि हम लोग कैसे करेंगे। एंड फाइनली इन द मंथ ऑफ जुलाई हम लोगों ने सारी चीज़ें सॉर्ट की, और सब चीज़ें हम लोग, वी केम अप विद द नेम ऑफ द कंपनी, वी डिसाइडेड अ लोगो, वी प्लान्ड एवरीथिंग, एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, लाइक 3rd अगस्त को, वी वर एबल टू टेक आवर फर्स्ट ट्रिप to Mushpuri। It was just a one-day trip and it was just to Mushpuri, but it was a houseful trip and it was the big success for me, क्योंकि हम लोगों ने, वो पहला ट्रिप था हमारा सफ़रनामा का जो हम लोग खुद लेके गए थे। हम एज एन ऑर्गेनाइजर, आई मैनेज्ड एवरीथिंग विद माई फ्रेंड, हम लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पर खुद अरेंज किया, सब कुछ किया, मतलब जिस तरह भी नॉर्मली ट्रिप्स जा रहे थे वैसा था। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ द फन, बहुत इन्जॉय किया।
बहुत ज़्यादा गेम्स खेली हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया। कवाली, जब हम लोगों ने रात को खाने का, देयर वाज अ कवाली नाइट एंड इट वाज द होलसम एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन एंड दिस वाज द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ दिस ईयर जो मैंने अचीव किया, ओनिंग माई ओन कंपनी। यस राइट। उसके बाद तो इनके ट्रिप्स जाना स्टार्ट ही हो गए, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, अभी भी बहुत मुश्किल होता है। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाइंटल इशू बट इट्स जस्ट फाइन, क्योंकि ऐसा ही होगा ऑफ कोर्स। ऐसा तो नहीं होगा कि हम स्टार्ट करें और स्टार्ट होते ही सब कुछ एकदम परफेक्ट चलने लगे। वी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट इन विच वी आर। I don't like that part though, but I have to. Then, as my second trip, I went to with Safarama, of course. ठीक है, I went to Mabali Island. और इस ट्रिप पे जाने से पहले हम लोग ऐसे वहाँ पर गए थे एक्सप्लोर करने विद माई फ्रेंड, मी एंड माई फ्रेंड। हम लोग एक्सप्लोर करने गए थे कि व्हाट्स एक्चुअली मवाली में होता है, क्योंकि इससे पहले मैं मवाली में कभी नहीं गई थी, ठीक है। मतलब गई थी बट उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था, ठीक है। तो अभी जब मैं वहाँ पर गई तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके, उनकी एक टार्जन बोट है जिसमें आप पानी में जो आपको बीच डैम के बीच में आपको लेके जाते हैं और फिर आप पानी में जाके स्विम करते हो। ओ माई गॉड यार, क्या I knew that I love water, but इसके बाद तो I started loving water even more. मैं बिल्कुल you cannot imagine you are jumping in random water, you in the dam, right? आप जंप लगा रहे हो डैम के अंदर और आप नहीं डूब रहे हो बिकॉज आपने लाइफ जैकेट पहना है ऑफ कोर्स। तो स्विमिंग तो मुझे नहीं आती थी, तो मतलब बट व्हाट एन एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो मतलब व्हेन आई टेल यू दैट आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ द न्यू थिंग्स दैट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट। एंड व्हेन आई टेल you that I made some beautiful decisions of my life, I talk about Safarnama and few more things that I'll tell you later on. तो ये सब था, सही है। I was exploring new things, new places, new decisions of my life which will change my life of course, ठीक है। तो ये सब चल रहा था और मबाली में जब मैं गई तो first time I swim in the water, though I don't know how to swim even now but still आप वहाँ पे पानी के अंदर जब आप जाते हो ऑफ कोर्स आप पैनिक होते हो, आपको पता नहीं चलता कि अब आप क्या, क्योंकि अच्छा लेट मी टेल यू हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब अब वहाँ आई वेंट विद अ फ्रेंड, तो वो तो पानी में तो जंप, ही वाज जंपिंग पानी के अंदर एकदम से दूर से आकर पानी में चला, उसके लिए तो बहुत मुझे लग रहा था ये क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ यहाँ पे खड़े होकर, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टेयर्स भी बनाई होती हैं ऑफकोर्स, जैसे पूल में होता है, ठीक है। आप स्टेयर्स के थ्रू नीचे जा सकते हो। तो जब मैं स्टेयर्स के थ्रू नीचे पानी में गई तो वहाँ पर जाके कोई ज़मीन नहीं है। स्टेयर्स तो उतर ली मैंने बट अब आगे कहाँ जाऊँ, नीचे ज़मीन नहीं है मेरे पाँव के नीचे, क्या करना है भाई, अब कुछ तो बताओ ब्रो। तो फिर माई फ्रेंड हेल्प मी अ लॉट कि ऐसे पानी में यू अपनी बॉडी को ऐसे करो, पानी में यूँ हाथ लगाओ, जो कुछ भी था उससे मुझे काफ़ी एक्सप्लेन किया। और उसके बाद आई वॉज एबल टू stand in the water, stand as in stay on the water, right, on the surface of the water. वैसे आपने लाइफ जैकेट पहने तो आप डूबते तो नहीं ही हो, बट स्टिल अगर आपको पता ही नहीं है कि पानी में घुस के इनकाउंटर पानी के साथ कभी लाइफ में हुआ ही नहीं, आपको नहीं पता पानी में घुस के करना क्या है, तो ऑब्वियसली आप पागल हो ही जाओगे, आप पैनिक हो ही जाओगे। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द पीपल जो मेरे साथ मबाली बाद में गए एंड आई फोर्स दैम एक्चुअली कि तुम लोग भी करो ये वाला एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ होलसम एक्सपीरियंस। तो जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया तो दे वर पैनिकिंग और मतलब दे वर नॉट इवन एबल टू लर्न कि क्या करना है। आई वॉज एटलीस्ट आई वॉज एबल टू लर्न कि करना क्या है। हाँ थोड़ा शुरू में 2-4 मिनट के लिए मैं पागल हो गई थी कि शिट ये क्या हो रहा है, मेरे नीचे ज़मीन खत्म हो गई, अब क्या करूँ, बट उसके बाद इवेंचुअली आई वॉज एबल टू लर्न। और उसके बाद अभी तो मैं प्रो हो गई हूँ, अभी तो मैं आसमानों से, उसके बाद मैं 1-2 बार और मबाली गई तो मैं उससे ऊपर से जाके जंप नहीं हो पाता था। आई डोंट नो, I am a very adventurous person. I still have a long list of my things that I have to do, right? उसमें से एक स्काई डाइव भी है, तो स्काई डाइव में आपको जंप करना होता है, उसके अलावा बंजी जंपिंग एंड अदर सच एडवेंचर्स जिसमें आपको हाइट से आप जंप करो। आई नेवर न्यू कि मुझे हाइट इट्स नॉट फोबिया, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्योंकि उसके बाद आई वाज एबल टू जंप फ्रॉम द टॉप, लेकिन उस वक्त मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था। आई न्यू कि नीचे ज़मीन पानी में मैं काफ़ी बार जा चुकी थी, पानी से मेरा एनकाउंटर हो चुका था, बट ऊपर से खड़े होकर जंप नहीं हो पा रहा था मुझसे।
तो आई केम टू द कंक्लूजन कि भाई मुझे हाइट से ही डर लगता है, मैं हाइट से ही जंप नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पानी मुझे तो पता है नीचे तो पानी ही है, पानी में जाके तो क्या ही होगा, और नीचे से मैं खड़ा होकर पानी में जा पा रही हूँ बट ऊपर से जंप करके मैं पानी में नहीं जा पा रही हूँ। तो इट्स प्रॉब्लम कहाँ है, ऊपर से जंप करने में। तो यार मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे तो स्काई डाइव करना था, अब मैं कैसे स्काई डाइव करूँगी, ये क्या होगा मेरे साथ, मैं तो हाइट जंप भी नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन गुड थिंग इन मी कि मुझे आई रियली वॉन्ट टू कनकर ऑल माई फियर्स। अगर मुझे किसी चीज़ का फोबिया है या मुझे डर लगता है उसे, तो आई वुड वॉन्ट कि मैं उसको ख़त्म करूँ। एंड 2-4 बार पानी जाने के बाद आई वॉज एबल टू जम्प फ्रॉम द टॉप, विच आई शो यू गाइज। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद on 11 September it was Ahmad's first day at school. It's not my achievement, it's not something that I have done, it's him, but still this is something very close to my heart. He's my nephew and I love him way too much. I don't love his parents a lot but I love him and his sisters way too much, right? So it was his first day at school, so I just wanted to take an advantage of this platform and show you guys that my way of loving him. Yeah, my way of celebrating the things. Alright, उसके बाद फिर सितंबर के एंड में हम लोग गए अरंकील। As I told you कि it was दिस ईयर वॉज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। तो आप लोग बस यही सुनोगे कि इसके बाद मैं कहाँ गई, 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 ठीक है। तो सुन लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो आई डोंट थिंक कि आप लोग के पास करने के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ है तभी यहाँ पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो देख लो, सुन लो, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो September 27 को वी वर एबल टू टेक आवर फर्स्ट स्टे ट्रिप टू अरंकेल। इट्स इन कश्मीर, इफ यू गाइज नो। तो कश्मीर में वी हैव, इट्स अ प्लेस वेयर यू हैव टू हाइक अप टू द टॉप ऑफ द माउंटेन विच इज़ अरंकेल टॉप। उसके नीचे इट्स अरंकेल बेस, और अरंकेल बेस से आप लोग ऊपर टॉप पे जाते हो हाइक करते करते, और देयर इज़ द वेरी गुड ब्रेथ टेकिंग व्यू, ठीक है। बट आई वेंट टू अरंकेल ट्वाइस। एक बार मैं वहाँ पर गई थी जब जनवरी दिसंबर था। इट वॉज ऑल वाइट, बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पर, और बहुत बिल्कुल सब कुछ वाइट था, ठीक है। एंड दिस टाइम आई वेंट इन सितंबर। तो सितंबर में ऐसे कोई ठंड तो नहीं थी, रात में थोड़ी ठंड हो गई थी बट बर्फ़ नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। तो इट वॉज ऑल ग्रीन, बट ऑनेस्टली आई लाइक्ड अरंकेल इन वाइट, just for your information, right? तो वहाँ पर we went to Arankel and it was a very good experience. Once again we had a lot of fun. We stayed, actually it was a group of my friends, तो मैं अपने friends के साथ ही गई थी। The trip was taken by Safarnama, but the people who participated in the trip were all my friends, right? तो उनके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत enjoy किया। We played a lot of games, even we played badminton on the mountain top, ठीक है। तो playing badminton on the mountain top is top tier the best experience, right? I think you all must do that. उसके बाद we took ludo and things like that with us, तो बस वो चल रहा था। We had bonfire, we danced, we had a lot of the fun। मतलब तो I have experienced traveling solo, I have experienced traveling with friends, and I love both। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं फ्रेंड्स के साथ जाओ तो ही मज़ा आता है, सोलो जाओ तो बहुत मज़ा आता है। यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स, यू आर एबल टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स जो आप फ्रेंड्स के साथ कभी कभी नहीं कर पाते हो। बिकॉज जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो यू आर ऑल अबाउट हैविंग फन, एंड मतलब ग्रुप में आप लोग घूम रहे हो, फिर फन कर रहे हो। बट जब आप अकेले जाते हो तो यू गेट टू एक्सप्लोर नेचर। बिकॉज जब मैं अकेले गई हूँ जितनी भी बारी, तो मैंने चीज़ों को बहुत डिफरेंटली एक्सप्लोर किया है एज कम्पेयर टू व्हेन आई वेंट विद माई फ्रेंड्स। तो उनके साथ ऐसा नहीं होता कि मज़ा नहीं आता, मज़ा तो बहुत आता है। बट जब आप सोलो जाते हो तो यू आर एबल टू सी थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। आई थिंक आप लोग अगर कभी एक्सपीरियंस करोगे तो देन ओनली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। और अक्टूबर में आई मेड एन अदर ब्यूटिफुल डिसीजन ऑफ माई लाइफ। आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन MPhil। बैचलर्स के बाद आई स्टॉप स्टडिंग क्योंकि मुझे लाहौर जाना था। एज आई टोल्ड यू मुझे एक्टर बनना था ऑल माई लाइफ। तो मेरा तो पक्का प्लान था कि बैचलर्स के फॉर्मेट में लाहौर चल जाऊँगी या कराची चल जाऊँगी। ब्राउन फैमिलीज नहीं जाने दे रहे थे घर वाले, ये एवरीथिंग बहुत ट्राई किया, बहुत कन्विंस किया, बट फाइनली लाहौर जाने के लिए शायद थोड़ा थोड़ा मान गए थे। तो मेरा मुझे NCA में एडमिशन नहीं मिल पाया था, ठीक है। मतलब मैंने उनका टेस्ट क्लियर कर लिया बट मैं उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट, क्योंकि इंटरव्यू उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं था।
इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा था अच्छा आपके फादर क्या करते हैं, अच्छा आप क्यों आना चाहते हो इनसे, मतलब कुछ टेक्निकल नहीं पूछा। इवन टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल थी, वो मैंने क्लियर कर लिया। जब कुछ टेक्निकल नहीं, जनरल बातें पूछना आपके अब्बू का, ये तो मुझे पता मेरे अब्बू का करते हैं, ये भी गलत बताई मैं क्या, शायद बता दिया मैंने गलत, तो उन्होंने मुझे नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद तो मैं नहीं सेलेक्ट हुई, तो आई कुडंट गो देयर। तो उसके बाद तो मेरा दिल ही उठ गया था पढ़ाई करने से। ठीक है, तो उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी पढ़ना छोड़ दिया। एंड इट्स बिन आई थिंक 5 years कि मैंने 5 years के बाद जाके दोबारा से आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन एमफिल। अभी तो खैर लास्ट सेमेस्टर, ऑलमोस्ट लास्ट सेमेस्टर है, समर्स चल रहे हैं, समर्स के बाद लास्ट सेमेस्टर होगा। ठीक है, होपफुली इफ आई पास। तो yes, this was a very good decision of my life to getting myself enrolled in MPhil. अब तो मुझे पढ़ना पसंद आ गया, इसके बाद तो मेरा PhD करने का भी प्लान है। Okay, then in November I went on another concert. Right now, as I already told you that I'm a party girl and I love concerts. अच्छा, बचपन में I never liked concerts. मेरे साथ ऐसा होता था, as you know that I ऑल माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। मुझे स्टेज पे जाकर परफॉर्म करना था, मुझे हमेशा से ही जाकर ऑन स्क्रीन चीज़ें करना पसंद है, मुझे हमेशा से ही डांस करना पसंद है, मुझे स्टेज के ऊपर रहना हमेशा पसंद है। तो जब भी मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा हर जगह, इवन इन माई वर्क लाइफ, आई हैव मेड श्योर कि मैं स्टेज के ऊपर ही रहूँ और कुछ ना कुछ वहाँ पे करती रहूँ। ठीक है, तो ऑल माई लाइफ मुझे स्टेज पे ही कुछ ना कुछ करना था, तो मुझे ऑडियंस बनना कभी भी पसंद नहीं था। ठीक है, तो बचपन में मेरे दिमाग में यही चलता था कि कॉन्सर्ट पे तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, बिकॉज मुझे नहीं ऑडियंस बनना, मुझे नहीं ऑडियंस में खड़े होकर तालियां बजाने किसी और के लिए जो स्टेज पर खड़े होकर रबिश, क्या ही फर्क पड़ता है। आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट अदर्स एज वेल, जिनकी कुछ अचीवमेंट है। अगर वो स्टेज पर खड़ा होकर गाना गाया तो ऑफकोर्स ही फेस अ लॉट ऑफ द स्ट्रगल to be on that place, right? So I think I should clap for him, and there's no harm in being an audience and standing in the crowd to appreciate somebody who came to that stage after facing a lot of struggle, right? ये philosophy मैंने अभी बनाई है। तो उसके बाद से मैंने कॉन्सर्ट्स पे जाना स्टार्ट कर दिया, एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी फन प्लेस टू बी, राइट? कॉन्सर्ट्स पे जाना इज़ अ फन थिंग टू डू, एंड आई लव, जब भी कभी कॉन्सर्ट्स होते हैं आई लव गोइंग देयर, और मैं सबसे पहले पहुंची होती हूँ वहाँ पे। तो नवंबर में देयर वाज अनदर कॉन्सर्ट ऑफ अब्रारुल हक। ऑफ कोर्स पंजाबी और अब्रारुल के गाने पे डांस ना करो तो मतलब पॉइंट क्या है आपके पंजाबी होने का ब्रो। तो इसलिए फिर उसके कॉन्सर्ट पे तो मैं गई ही गई। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत मज़े आया, बड़ा डांस किया हमने, बड़ा नाचा, बहुत गाने गाए, बहुत मज़ा आया। ठीक है, और उसके बाद आता है जी दिसंबर, विच इज़ माई फेवरेट मंथ बिकॉज इट्स माई बर्थडे मंथ। दिसंबर में हुआ मेरा बर्थडे। इट्स नॉट एन अचीवमेंट अगैन, बट वाई नॉट, आई हैव टू सेलिब्रेट माई सेल्फ भाई। इट्स, और अब से मैंने प्लान बनाया कि ऑन एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे आई विल गो ऑन अ ट्रिप। तो फिर दिसंबर में हम लोगों ने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड वाई नॉट, मतलब इट्स नॉट एन अचीवमेंट आई नो, बट वाई नॉट। इतना कुछ किया मैंने अपने पूरे ईयर में, इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए, इतना कुछ किया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो आई deserve to celebrate my one day, right? So I did. And then in the month of January of the year 2025, I did something really incredible, really great. I bought myself a car. Can you imagine a girl who is just 27 years old has bought her own car? It's not a good car though. I would not recommend others to get that car. But do I like that car? No. But am I proud of myself? Yes. So this is my accomplishment. मैंने बोला था कि अच्छे accomplishments मैं end पे बताऊंगी, तो अब almost I am coming to an end. And after that, again my traveling journey begins. I went to Pir Chanasi, I went to Shogran, I went to Mabali on and off. These are good places. I had fun, but not way too much. I had fun way too much, but not about the places. These are not very good places कि मैं बहुत अच्छी place है, but it's good. मतलब explore तो करना ही था ना. It's in my हेड कि मुझे कोई भी जगह है तो उस पर जाके उसको एक्सप्लोर करना ही है, अच्छी है गंदी है डजंट मैटर।
तो जाना तो है ही, तो नहीं जाऊंगी तो रिग्रेट रहेगा, तो जाऊंगी, गंदी भी निकलेगी तो इट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट श्योर विच मंथ वाज इट, बट इन द ईयर 2025 आई presented at NICAT. I presented my company at NICAT. I was invited as a guest speaker at NICAT, right? And there I presented my company where I was working, and I did great. I'm gonna share some clips with you. It was a very good experience. I was very nervous. I was not sure कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, because I'm not very professional human, right? Even my manager told me कि I'm very childish, which I agree with her because I am childish. So I was not even, they were not sure कि ये कर पाएगी कि नहीं. They kept telling me कि प्लीज़ जाके स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर लेना, प्लीज़ जाके स्टेज पे हमारी नाक मत कटवा देना, प्लीज़ जाके स्टेज पे तुम बच्ची मत बन जाना प्लीज़. तो मतलब इवन आई वॉज नॉट श्योर कि मैं प्रोफेशनली वहाँ पर सब चीज़ें कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई डिड दैट. तो मतलब जहाँ पर मुझे प्रोफेशन बनाते हैं मैं बन जाती हूँ. ओवरऑल आई एम चाइल्डिश, येस, बट मैं क्यों मारूँ अपने अंदर का चाइल्ड. आई एम चाइल्डिश एंड आई वॉन्ट टू बी चाइल्डिश एज लॉन्ग एज आई स्टे इन द वर्ल्ड, राइट. तो प्रोफेशनल जहाँ पे मुझे एक्ट करना होगा वहाँ पे मैं करूँगी, नो डाउट, बट रहूँगी मैं हमेशा चाइल्डिश ही, ठीक है. तो प्लीज़ एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू दिस वीडियो, आप लोग ये जान लें कि मैं बिल्कुल भी चाइल्डिश एक्ट करना नहीं बंद करूँगी. तो ये हुआ मैं, बट गुड थिंग इज़ कि आई वॉज एबल टू परफॉर्म रियली ग्रेट, और आई गॉट सम सोवेनियर्स इज वेल. उसमें कुछ खास तो नहीं था, कप एक कप था, आई गॉट अ पेन, आई गॉट अ डायरी, आई गॉट अ नाइकैट का वो सम स्टिकर टाइप थिंग, आई एम नॉट श्योर वो क्या चीज़ थी, बट इट वॉज गुड. इट वॉज अ होलसम एक्सपीरियंस बिकॉज only from my entire company, only I was able to go there and present my company on the stage among so many professionals. They asked me a lot of questions, I was able to answer them. It was a very good experience for me. I always wanted to be a motivational speaker, I always wanted to be a public speaker, I wanted to be on the stage all the time. So these are the little accomplishments that I can get. मुझे तो एक्टर बन के करना था ना ये सब, बट इफ़ नॉट दैट तो कोई बात नहीं, आई कैन डू दैट another way. और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी, विच आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ. थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है. ऑलराइट, तो इसके बाद जब ये हो गया, तो अब कुछ टाइम के बाद इन द मंथ ऑफ February I put resignation to my job. I quit that job. I stayed there for more than 3 years. I joined in 2021 and I left 2021, 23, 24, 4 years, almost 4 years, right? I was there in the company for almost 4 years, and after 4 years I quit that job because I got another one. Right? So I put my resignation, and I don't know why, but I felt so relieved. Matlab, it was not the company was fine, it was good, people was fine, it's just me. I told you I'm not a job person, so I really 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 don't like doing any kind of job जिसमें मुझे रूल्स फॉलो करने हैं कि इतने बजे आपको ऑफिस आना है, इतने बजे आपको ऑफिस से जाना है, आपको इतनी ब्रेक्स मिलनी है, आपको ये कर नहीं करना, मुझे नहीं आना, मुझे 9 बजे ऑफिस, मुझे 9:10 पे आना है, क्या है इसमें, व्हाट्स द बिग डील. बट कॉर्पोरेट में इट्स अ बिग डील. उसके बाद आफ्टर अ मंथ ऑफ माई नोटिस पीरियड आई जॉइंड अनदर कंपनी विच इज़ द ग्रेटेस्ट कंपनी आई हैव वर्कड इन. इट्स Zones, right? और वहाँ पर I was in my probation, ठीक है, and I hosted an annual gala of Zones, जहाँ पर more than 500 people attended that event, and I hosted that event on the stage in front of all those 500 people, the suited booted people. They were all professionals, the CEO of the company, the presidents, the vice presidents, the executives, the big people, you know, and my colleagues, of course. But all of the big people were there, and I was on the stage hosting the event. Can you imagine?
because I cannot. It was the greatest day of my life because मुझे तो स्टेज पे ही रहना है भाई. दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी, दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम गुड एट. उसके अलावा तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता. तो दे टुक माई ऑडिशन. जब मैंने जोन्स ज्वाइन किया था तो फर्स्ट डे पर ही मैंने आई सॉ एन ईमेल कि देयर इज़ एन एनुअल गाला जिसमें कॉन्सर्ट होगा, जिसमें ये होगा. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने अपनी जल्दी से एक फ्रेंड को फोटो खींच के भेजी कि यहाँ पर तो ये हो रहा है. आई अटैच दैट फोटो एज वेल. ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट डे पर ही. उसके बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी तो ट्रेनिंग में आई रैंडमली गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई ट्रेनर कि आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसको होस्ट करना है इवेंट. तो मुझे तो मतलब ये कोई बात है, इज दिस इवन अ क्वेश्चन. मुझे तो मैंने बोला मुझे तो. उसके बाद मुझे ऑडिशन किया मैंने उसके लिए, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन द ऑडिशन ऑफ कोर्स. उसके बाद हम लोगों ने रिहर्सल्स वगैरह स्टार्ट की. आई गॉट अ स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, बट आई मेड माई ओन स्क्रिप्ट. वैसे मुझे खुद से उसको थोड़ा बहुत चेंज करके ना खुद से मैंने बना लिया था. कॉन्टेक्स्ट सेम रहा था बट चीज़ें मैंने खुद से करनी थी. ठीक है, और फिर उसके बाद आई वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट. जब फाइनल डे आया आई वॉज नर्वस. मुझे तो लग रहा था मैं बीच में कुछ ना कुछ भूल जाऊंगी और मैं कुछ गलत बोल के आ जाऊंगी. वो मुझसे एब्रप्टली नहीं हो पाता है. मतलब दिस इज़ नॉट इन मी कि मैं रैंडमली मुझे कुछ भी अगर कुछ भी परफॉर्म करना है ना तो मुझे उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद मैं एक्ट कर लूँगी कि मैं अभी ही बोल रही हूँ इट्स रैंडम, बट इट्स नॉट रैंडम. मैं एक्ट कर लूँगी बट रैंडम कर नहीं पाऊँगी. तो मुझे बस एक यही खतरा था कि बीच में अगर मैं कुछ भूल गई तो एकदम से स्टेज पे मुझे क्लिक हो गया दिमाग में कि ओ शिट मैंने ये भूल किया, तो वो जो अगला पार्ट है बोलने का मैं उसको भी ना मैसअप कर दूँ. ठीक है, तो बट कुछ भूला नहीं, सब बिल्कुल ठीक हुआ. मुझसे एब्रप्टली कुछ नहीं हो पाता. तो मैं वहाँ पर तो जल्दी जल्दी दिमाग लगा के नहीं बोल पाती कुछ और कि ये हो गया मिस, तो कोई बात नहीं ऐसे इम्प्रोवाइज कर लूँ. तो मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो पाता. बट खैर कुछ भूला ही नहीं था और सब कुछ बहुत ऑसम गया था. बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया था. इट वॉज अ वेरी गुड एंड फन डे फॉर मी, द ओनली गुड डे एट जोन्स. उसके बाद आई गॉट 2 लिटिल फिश फॉर माई बेबीज. It's not an achievement, but again I want to take an advantage of this platform and tell you this कि ये भी किया मैंने. इसके बाद जब ये इवेंट हो गया था तो वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द इवेंट आई टुक माई पेरेंट्स फॉर द डिनर. इस इवेंट की खुशी में भी और आई गॉट अ न्यू जॉब उसकी खुशी में भी. आई डोंट नो फॉर व्हाट बट आई टुक देम टू द डिनर और मैंने उन लोगों को ट्रीट दी एंड वी हैड फन. मज़ा आया हम लोगों को. अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव अ पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ अस टुगेदर बट yes, I have a video where me and my little babies are having a little fun. So yeah, ठीक है. उसके बाद फिर मदर्स डे आया तो आई टुक माई मॉम आउट. वी हैड दिस लिटिल पीस ऑफ केक एंड वी हैड टी एंड वी हैड सम me time, us time with my mom. So it was a good experience as well. Last but not the least, I went to the Noori waterfall in Islamabad. It's in Haripur actually. तो हम लोगों ने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया था और हम लोग नूरी वाटरफॉल पे गए. इट वाज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस बट बिकॉज पानी वाली हर जगह तो मुझे ज़रूर ही जाना है लाइफ में. ठीक है, आई डोंट नो बट पानी, water is my guilty pleasure. If anybody would ask me कि what is your guilty pleasure, पानी it's ग्लास में भरा हुआ पानी नहीं, but the water जहाँ पे मैं पानी के सामने तो घंटों बैठ के बस उसको देख सकती हूँ, मैं बोर नहीं होंगी उसमें. ठीक है, और मैं जिस पानी में स्विम कर सकती हूँ मैं वहाँ पे अंदर भी जाऊँगी बट विद लाइफ जैकेट ऑन ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे डूबना ही नहीं है अभी. और स्विमिंग तो मुझे नहीं आती. इट्स माई ड्रीम कि मुझे स्विमिंग सीखनी है बट आई डोंट नो क्या ही चल रहा है. पिछले 2 साल से मैं स्विमिंग सीखने के चक्कर में हूँ कि इस बार मैं क्लासेस लूँगी. तो जब भी समर्स आते हैं मुझे नहीं पता मैं विंटर्स में स्विमिंग क्लासेस ले सकती हूँ कि नहीं. मुझे तो बहुत जल्दी लगती है. ठीक है, तो बट मेरा प्लान तो हमेशा ये होता है कि समर्स में स्विमिंग क्लासेस लूँगी. तो जब भी समर्स आते हैं तो समथिंग हैपन्स भाई. मुझे नहीं पता कि क्यों मैं नहीं ले पा रही हूँ स्विमिंग क्लासेस. आई डोंट नो वाई. ठीक है, और नहीं हो पा रहा मुझसे. तो इट्स स्टिल माई ड्रीम क्योंकि ये तो मुझे करना है. स्विमिंग तो मुझे सीखनी है. इट्स ऑन माई लिस्ट but I'll do it one day. So yeah, फिर हम लोग नूरी वाटरफॉल गए. We had fun as you have seen in the pictures और बहुत मज़ा आया. We had fun and it was a good day as well. और इस दिन के बाद से I think एक और चीज़ भी हो रही है बट I would not share that because it's very personal अभी.
not personal, but it's something which hasn't happened so far. Relax, शादी नहीं होनी मेरी, chill, ठीक है? It's about my professional life. तो professional life में I'm also planning to do another thing. We are working on that. कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं. I'll reveal that later on. अभी नहीं हो सकता because अभी it's a very early to say something, right? तो अभी नहीं बताऊंगी, but later on someday I will tell you. I think I'm done. मैंने अपनी सारी list complete कर लिया, सब कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया है. Everything that has happened this entire year with me. So yeah, it was it for the video, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Goodbye. See ya.